Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk more about managerial economics. जो हमारा last video था, in that video we have talked about the definitions of economics that have changed over a period of time. हमने वो टॉपिक्स के बारे में बात की थी कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है कैसे इतने टाइम से कैसे धीरे धीरे हर एक फेज में क्या होती हुई चेंज होते हुए चली आई. Now today we are going to talk about the meaning of managerial economics. Managerial economics is a discipline that combines the economic theory with managerial practices. एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो उसका क्या मतलब हो रहा है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं है. दिस इज जस्ट एन फ्यूजन ऑफ बिजनेस or the managerial problems when combined with economics becomes managerial economics. That means in this manner we can say that कि जब हम business related problems को हम क्या कर दें economics ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है managerial economics. या आप ये कह सकते हैं एक तरीके से जब हम business में economics को ऐड करके या economics के जो हमारे principles होते हैं rules होते हैं उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो एक हमारा independent discipline बन जाता है and that we know as managerial economics. It tries to bridge the gap between the problem of logic that introduce economic theorists and the problem of policy that plague practical managers. The subject offers powerful tools and techniques for managerial policy making. An integration of economic theory and tools of decision sciences work successfully in optimal decision making in face of constraints. A study of managerial economics enriches the analytical skills, helps in the logical structuring of problems, and provide adequate solution to the economic problem. Overall, this paragraph, it just says that when we apply the economic problems or economics theory to the business problem, we get a more logical solution to the problem. अगर हमारे पास कोई बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगा दें, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का थ्योरिकल अप्रोच लगा दें तो जो हमारे पास आउटकम होता है वो ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू अ इरेशनल अप्रोच. As in this particular graph, we can see that we are using the theory and methodological from economics by combining the business related problems and then we get a subject called managerial economics. So it is just an application of economics to solving business problems and at the end we can say that the end is the optimum solutions to the business problems. Now as per the definition given by McNair and Merriam, managerial economics is the use of economic modes of thought to analyze business situations. That means जब हम economic modes को हम use करने लगे business की situations को analyze करने के लिए तो उसको उन्होंने क्या बोला है कि that is an independent discipline called managerial economics. Whereas according to Hailstone and Rothwell, managerial economics is the application of economic theory and analysis to practice of business firm and other decision. ओवरऑल ऑफ कोई भी पॉइंट अगर घूम फिर के आप जाओगे तो आप मैं सिंपल सा ये एक वर्ड में ये बोल सकता हूं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ फ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस. दैट मीन्स जब हम बिजनेस को और इकोनॉमिक्स को दोनों मर्ज करके एक तरीके से सोचने लगे तो वो क्या पार्ट बन जाता है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बन जाता है. And this is again a graph and I would suggest all the students of Lucknow University to use as much as flowchart you can use for your answers. क्योंकि देखा जाए तो सारे बच्चे एक ही कंटेंट पढ़ रहे हैं तो only thing that can differentiate your copy from the other student is the flowchart or is the representation. आपकी कॉपी का जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा वो उतने अच्छे आपके नंबर स्कोर करके देगा. तो I would suggest all of you to use as much as flowchart you can use. So in this particular flowchart we can see that we are applying the economic theory, we are adding, there's some management problems, obviously we are applying some management problems, we have some management problems, we are using the subject of managerial economics to get our optimal decisions. But what is managerial economics? This is in which we add some economic theory, थोड़ी अपनी economic theory को हम इसमें ऐड करते हैं. इकोनॉमिक की जो मेथोलॉजी होती है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव मॉडल कह लीजिए या प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल कह लीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं. थोड़ा सा साइंसेस का डिसीजन, थोड़ा यानी कि थोड़ा हम प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ को भी फॉलो करते हैं. एंड स्टडी ऑफ फंक्शनल एरियाज लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, थोड़ा बहुत हमें जो कॉमन एरियाज होती हैं फाइनेंस की वो भी हम इसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं. देन ओवरऑल द सम वी गेट एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फ्रॉम दैट वी कैन गेट द ऑप्टिमल डिसीजंस. Now studying furthermore when we need to talk about the scope of economics, क्योंकि हमारे यूनिट 1 में एक important part होता है that is nature and scope of managerial economics and we have covered the part of nature. Now we are going to cover the part of scope of managerial economics. जो scope of managerial economics होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था economics का जो scope होता है वो दो पार्ट में बटा होता है माइक्रो एंड मैक्रो. Similarly the scope of managerial economics is also divided into two parts.
where the microeconomics is applied to operational issue as well as macroeconomics is applied to the business environment. Now what are the factors that are included in this operational issue? इसमें क्या क्या आता है? हम थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी करते हैं. वी स्टडी द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजंस. आप लोग को याद होगा क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज डिमांड, व्हाट आर द लॉ ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हम लोग ने पढ़ रखा है. प्राइसिंग थ्योरी एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इनकी प्राइस, यही सारी चीज में इंक्लूड हो जाती है. एंड देयर इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट. फिर हम इसमें एक चीज और पढ़ते हैं, हाउ डू वी गेट द प्रॉफिट, हाउ टू ऑप्टिमाइज द प्रॉफिट. ये भी एक पार्ट किसका पार्ट होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पार्ट बन जाता है. एंड द लास्ट इज थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो हम इस पार्ट को भी कवर करते हैं. ये सारा हमारा क्या होता है, क्योंकि इंडिविजुअल अप्रोच लेकर जाता है, कंपनी अपने ऊपर स्टडी लेकर करती है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज बीन अप्लाइड टू द ऑपरेशनल इश्यूज. लेकिन जब बड़े लेवल पे बात करते हैं तो देयर आर वेरियस अदर एनवायरमेंट्स दैट इफेक्ट द बिजनेस. कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं. इसमें आपका एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, उस कंट्री की जीडीपी कैसी है, वहाँ का आपको सपोर्ट कैसा है. सोशल एनवायरनमेंट यानी हाउ द सोसाइटी इज, क्या वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम कैसी है, लोगों इन हैंड कैसे हैं, वहाँ पे ज़्यादा सेक्शन रिच का है, ज़्यादा सेक्शन पुअर का है, या फिर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स इफेक्ट द कॉन्सेप्ट. As well as the political background of the country is also have a direct impact on the business. तो हम ये सारे फैक्टर्स को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. एंड दैट इज व्हेन वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. Now when we are talking about all these factors I have talked about in this all in detail. Theory of demand, the demand theory emphasis on the consumer behavior towards a part or services. It takes into consideration the needs, wants, preferences and requirement of the consumer to enhance the production process. In any business there is need for raising the demand. किसी भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है. वो हम कैसे रेज करेंगे? जब हम कस्टमर की नीड्स और वांट्स को उनको हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. तो हेयर वी यूज द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. नाउ व्हेन वी वांट टू स्टडी द प्रोडक्शन डिसीजंस, दिस थ्योरी इज मेजरली कंसर्न विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस, कैपिटल and required cost etc. It involves maximizing the output to meet the customer's demand. तो हम इसमें भी हम क्या करते हैं? हम अपनी कॉस्ट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं. भाई हम कितने मास लेवल पे जाएंगे, शुड वी गो फॉर स्मॉल लेवल, क्या हमें लेबर इंटेंसिव यूज करनी है या हमें कैपिटल लेबर इंटेंसिव यूज करनी है. ये सारे फैक्टर्स का हमें क्या मिल जाता है? सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है. देन देयर इज अ पार्ट ऑफ प्राइसिंग थ्योरी एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. इट फोकसेस ऑन द प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट. कोई भी बिजनेसमैन आता है, उसने प्रोड्यूस कर लिया, अपना टारगेट एरिया कर लिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइसिंग. क्या उसे कॉम्पिटेटिव प्राइस रखना होगा या पेनिट्रेटिंग प्राइस रखना होगा? ये सारे डिसीजंस भी हमें क्या लेने पड़ते हैं? एक बिजनेस में लेने पड़ते हैं. एंड दैट इज व्हेन इकोनॉमिक्स हेल्प अस. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉफिट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट. द ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर अ प्रॉफिट. Therefore, they always aim at profit maximization. It depends upon the market demand, cost of input and competition level. तो उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं. There's a cost हमारा एक होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, हमारा सेल होता है, कॉम्पिटिशन लेवल होता है. इन सब को डिसाइड करके हम अपने प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं. वी ट्राई टू मैनेज दैट प्रॉफिट. नेक्स्ट पार्ट इज थ्योरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Capital is the most critical factor of business. This theory prevails the proper allocation of the organization capital and making investments in profitable projects or ventures to improve organizational efficiency. Obviously, कंपनी के पास कैपिटल क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, बट उनके पास जो सरप्लस होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं. नाउ दे हैव टू मेक सम इफेक्टिव डिसीजन दैट कैन जनरेट मोर रेवेन्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन. अब उनको अपने पास पैसा है, जो सरप्लस है वो सही जगह इन्वेस्ट करे जिससे उनके पास रेवेन्यू ज़्यादा हो, मार्केट शेयर हमारे पास ज़्यादा हो. ये सारे फैक्टर्स वो क्या करती है? ध्यान में रखती है. और इसमें कौन हेल्प करता है? इकोनॉमिक्स उसकी हेल्प करता है. नाउ द मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पार्ट होता है वो हम अप्लाई करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट में, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक एनवायरमेंट होता है. द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ अ कंट्री दैट इज जीडीपी, इकोनॉमिक पॉलिसीज इनडायरेक्टली इंपैक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन. जैसे कि मैंने ग्राफ को देख करके बोला था कि वहाँ का इकोनॉमी कैसा है, वहाँ की जीडीपी कैसी है, वहाँ की रेवेन्यू कैसी है. ये सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे? इम्पैक्ट करते हैं. और हमें ये चीज़ ध्यान में रख करके ही अपने बिजनेस को रन करना चाहिए. Whereas the social environment deals with the employee conditions, trade union, consumer operatives, कि वहाँ की ये सारी पॉलिसीज कैसी है. अगर सोशल एनवायरनमेंट बहुत ही लीनेंट होगी तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? यू कैन गो फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर वगैरह, जैसे यहाँ पे होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट इन द कंट्री लाइक बांग्लादेश और इन द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान दिस एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर. इंडिया में भी ऑलमोस्ट वो चीज़ है, बट कंपैरेटिवली टू दिस कंट्री वहाँ पे
देखा जाए दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट लो। अगर हम ये चीज़ अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, एकदम लीस्ट है। दैट मीन्स वहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं वो एकदम अच्छी कंडीशंस होती है, ज़्यादातर कंडीशंस हमारे एम्प्लॉय के फेवरेबल में होती हैं। तो ऐसे में ये सारे फैक्टर्स हमें क्या करने पड़ते हैं, ध्यान देने पड़ते हैं बिफोर सेटिंग अप अ बिजनेस। Now, the political environment, the political structure of a country, whether authoritative or democratic, political stability and attitude towards the private sector influences organizational growth and development. So, we can say that managerial economics provides an essential tool for determining the business goals and targets, the actual position of the organization and what the management should do fill the gap between the two. That means कि एक managerial economics होता है जो अपनी targeted area और actual position के बीच में gap को क्या कर सकता है, cover कर सकता है. So I'm pretty much sure that I'm able to clear the concept what managerial economics is. Now in the next topic we are going to further more from the unit 1 only. Thank you students, have a good day.